some icebreaker activity. So I am telling you something, आप उसको mind में रखेंगे. I am giving you some actions along with some numbers. You have to remember that. ठीक है? Then I will say the number and you will do the action. थोड़ा खड़ा भी हो जाएंगे, थोड़ा बैठ भी जाएंगे. ऐसा जरूरी नहीं है कि बैठ के ही करना है. रुपिंदर मैम थोड़ा सा इधर हो जाइए so that he can capture you. Okay. So your activity is number 1. ठीक है? For number 1 you will do clap above your head. That is number 1. All number 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा एक्सरसाइज. ठीक है, चलो. Now tell me what is number 1, number 2, yeah, 3, no, 2, एक मिनट दे रहे हैं 4, 5. ओके सर बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। राजीव सर 5 ऐसे है, यहाँ नहीं करना है. ओके, अब मैं कोई भी नंबर बोलूंगी, आपको सबको याद हो गया? ठीक है. 5. डांस मैं आई एम वॉचिंग यू इज डूइंग द रॉन्ग. 3, 2, 1, 5, डांस 4, 3. Sit down. एक मिनट This is just to coordinate your body and mind, है ना? Numbers आपको mind से याद रखने हैं और actions आप अपनी body से कर रहे हैं. Today's me and Deepak sir are taking the joint session. Reflection and refraction of light. It has been given by the teachers that please take this topic. And reflection starts from class 6. In class 6 we just introduced reflection in light and shadow chapter. Light, shadow, reflection भी है उसमें थोड़ा सा introduction. Then in class 7 it is in detail, and in class 8 we refraction. We take refraction. So please, first, what is light? We all know that light is a form of energy which enable us to see. Light is the part of electromagnetic spectrum which we can see. बच्चों को electromagnetic spectrum अभी नहीं पता है, but just introduce them. There are various types of wavelengths, and electromagnetic spectrum में कई तरह के आते हैं, gamma rays, ultraviolet, infrared, X-rays. Then what is light? Light is the part of electromagnetic spectrum whose wavelength is how much? 400 nanometer to 700 nanometer. These wavelengths are visible to us. That is known as light. Light always travel in a straight line called rays. So you can show the path of light to students. Light travels in the straight line. That is why the shadow is formed. And you can show the path of light with the help of these laser lights. The students are excited to see how light travels. We cannot see the path of light. तो what you have to do? अगर आपके पास, मतलब अभी मैं नहीं दिखा दूँ लेकिन मैं बाद में आपको दिखा दूँगी. You have chalk and duster in every classroom. You don't need that incense stick. Just chalk रगड़िए डस्टर के ऊपर and उसको इस तरह से करिए and then show this. तो वो पूरा आपको path of light उसी में दिखाई दे जाए. Then ask them the question, because we have to ignite their minds. We have to motivate them. See why the laser light was not visible when I was doing this through air, but it is visible when I have spread the chalk powder in the air. What is the role of chalk powder? Here. Can anybody answer out of you? Yes. For scattering of light, although there are dust particles present in air, they also scatter light, but that is not visible to us. The scattering is very less. When we introduce some particles in the air, then we can easily see. Even if there are droplets of water in the air, then we can see light. If there is smoke, we can see the path of light easily. A bundle of rays is known as a beam of light. This is a ray. These are parallel beam, then divergent and convergent.
तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि रे डायग्राम में वी यूजुअली टेक ओनली 1 रे या 2 रे फॉर डायग्राम्स। अब बच्चे सोचते हैं कि इतनी ही लाइट आ रही है, क्योंकि आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि वो क्या सोच रहे हैं। जब आप उस लेवल पे थे तो आप क्या सोचते थे। तो उनको ये बताना है कि वी हैव टेकन द 2 रेज ओनली फॉर द कन्वीनियंट ऑफ डायग्राम। नहीं तो लाइट तो बीम के रूप में आ रही है, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ बीम। Then luminous and non-luminous objects. This is also in class 6. ये तो बहुत easy है, बच्चे बता देते हैं easily. The objects which gives their own light, they are called luminous object. They can be artificial as well as natural. Natural like stars, sun, even firefly. And then there are artificial like LED tube lights, even your TV. It also gives light when you on. Non-luminous objects are those which do not give off their light, and they can reflect the light. Non-luminous objects can reflect the light. Example: table, board, moon, etc. Then reflection. Start from class 6. What is reflection of light? बच्चों को बताया जाता है bouncing back of light from any surface is called reflection. We give them example of ball also. That a ball, when we throw a ball at a wall, it comes back to us. अगर नीचे भी फेंकेंगे तो भी वो बाउंस होके बैक आती। बट उनको समझना इतना इजी नहीं होता है कि what happens when light falls on a surface. What happens to light? Actually में when light falls on a surface, 3 things happen. It may reflect, it may refract, it may scattered. And it is absorbed also. Absorption of light with it. That is not true कि हमेशा light पूरी की पूरी ही reflect हो, है ना। Some objects can reflect maximum amount of light, some reflect less amount of light. Then we can tell them by taking the examples of transparent, opaque and translucent. क्योंकि transparent objects है तो उसमें से light will pass through, completely travel करेगा उसमें से. Some will be reflected maybe, but in opaque object they will absorb all the light. And translucent, some light will reflect, some will pass. दिखाओ ना रिफ्लेक्शन. हाँ रिफ्लेक्शन दिखा देंगे. और सर मैं वो जला दूँ. ये नहीं, ये भी हम लोग. That is reflection of light. Very easily you can see. Sir is pointing the torch on the mirror, and it is seen on the wall, roof of the roof. What is that? That is reflection of the. when students are sitting by the window. Sometimes that happens. Or you can show the path of light also in this. पहले इसमें मैं regular reflection by using a mirror, and that is a screen. प्लेन सरफेस Screen दी गई है सबको. इस साइड से हां जाइए. ये मोबाइल चलाइए. लाइट वो बंद करवा दें क्या? लेजर वाला ज़्यादा सही रहता है. आँख पे जाता है. ये देखिए. You can see that is what. ये आपको बहुत पॉइंटेड दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर जो है कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है. I am रेगुलर reflection with the help of mirror. Now I am using this crumpled aluminum foil. So it is a rough surface. Regular reflection takes place through plain surface, shiny surface, and irregular reflection takes place through rough surface. Even I can do with the help of this paper also. Paper is also rough, although it looks smooth to us, but it has irregularities. So, now you can see the irregular reflection. That is very easy. हाँ, क्योंकि लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में. पहले हमें लाइट कैसे दिखाई दी थी? रिफ्लेक्ट पॉइंट के रूप में. Now
हाँ, यू कैन सी द डिफरेंस। इवन पेपर से भी हो जाएगा, इस पेपर से भी देखिए, यहाँ से भी आपको दिखेगा। मैंने पेपर पे डाला है, उसमें चेंज है, इसमें थोड़ा सा, इसमें इस तरह से दिख रहा है, इसमें और दिख रहा है डिफरेंट। और अगर आप यूज करेंगे दैट CD हाँ सीढ़ी सरफेस उसमें और सुंदर दिखाई देता है, बट इट इज ऑल्सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। So we'll show the students with this activity. It is very simple activity and don't need much material. लेज़र लाइट बच्चे अपने आप ही ले आते हैं, मिरर आपको चाहिए, और आप प्लेन सरफेस भी अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल, और यू कैन यूज़ पेपर भी यूज़ कर लीजिए, पेपर को क्रम्पल करके यूज़ कीजिए, प्लेन पेपर यूज़ कीजिए, अलग अलग तरह से उनको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आप दिखा सकते हैं। एक्सपेंशन लर्निंग का एग्जांपल है मैम, एक्सपेंशन लर्निंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, एंड ये इन दोनों के बीच में होगा। एंड नॉर्मल इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन। एंड व्हाट डज इट मीन सर, कि कोई मुझे बता सकता है कि प्लेन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सरफेस थ्री डायमेंशन, इट हैज x y z एंड ये बच्चों को नहीं पता होता है कि एक ही, यानी या तो वह x प्लेन पे होगा, या y में होगा, या वो z पे होगा। कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाता है। तो अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए वी कैन प्रूव दैट, सपोज दिस इज, हमने ये यूज किया है, गाय है हम लोग लेफ्ट से, सर आप उधर से करिए, मैंने ये पकड़ा हुआ है, मैम आप देखिएगा, you have to observe the angle of incidence and angle of reflection, and this is the protector which we have taken from maths lab, we have borrowed, but अगर आप इसको ऐसा नहीं यूज कर सकते, आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के व्हाइट कलर पे वो भी यूज कर सकते हैं। तो इट वाज मोर कन्वीनियंट, तो हमने ले लिया, मिल गया। तो चलिए सर देखिए, मैडम कैन यू सी द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? धुआं थोड़ा कम हो रहा है लग रहा है, धुआं कम हो गया मैम। एक मिनट रुकिए सर। इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। See, I'm changing the angle. Changing the angle of incidence will change the angle of reflection. हाँ सर, यस। Done? Is it okay? यस। ऐसे ठीक है, खुशबू आ रही है। ये भी इस तरह से भी आप यहाँ बना लीजिए, ठीक है, उस पे आप पिंस लगा लीजिए, एंड उसके बाद उसको इधर से इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, फिर इधर पिंस लगा लीजिए, तो आपको जो इसके अंदर दिख रहा हो, जो इसके अंदर, वो सब क्या होंगे, एक लाइन क्रॉस तो यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हैं कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई डोंट हैव पिंस, नहीं है मेरे पास, तो यू नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, हमें तो समझ में आ गया, लेकिन बच्चों को एक चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम वर्चुअल बता देते हैं, वो हो गया चलो कि वो स्क्रीन पे नहीं बना, फिर हमने बता दिया कि सेम साइज, क्योंकि हम वो रोज़ अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, दे नो कि दिट इज ऑफ सेम साइज, कलर विल बी सेम, बट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, द इमेज विल बी फॉर्म as far behind the mirror as it is in the front of the mirror. So for showing that, we have used that, these are all simple things which are available in your school. हाँ, this is the chessboard, तो इसमें थोड़ा easy होता दिखाना। एक मिनट। अब कोई और आएगा, सर लोग की तरफ से कोई आएगा, आइए नवल सर। तो आप बच्चों को इस तरह से बाय यूजिंग दैट चेस बोर्ड एंड दैट पॉट आई हैव यूज्ड, तो सर आप देखिए ना, इसको थोड़ा बैंड हो जाइए, यू कैन सी, इज इट ऑफ सेम साइज, कलर सेम है। नाउ डिस्टेंस ऑफ इमेज आप कैसे बताएंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर? कोई नए इट इज इन द फिफ्थ बॉक्स। नए पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे मैम। हाँ, एंड नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट इसमें बताइए, इनसाइड द मिरर, अभी आइए मैम। इनसाइड द मिरर 5 पे। अब अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया तो
सबको समझ आ गया ये? इज इट मैम, एक क्लियर? बार- नहीं आया तो आप आके देख रुपिंदर सकते मैम एक बार इन लोग को भी बता हाँ दीजिए। ठीक है। तो when we teach them that image is in the mirror as far behind as it is in front of. By counting the boxes. We can count the box. It is of same size. Yes, ma'am. Two box, third box. Third box. Inside the mirror, Third third box. तो बच्चे एकदम समझ जाएंगे। लैटरली इन्वर्टेड भी होगा मैम, इससे बता सकते हैं। Lateral inverted हम इससे हाँ, बता बता सकते हैं। Lateral inversion भी बता सकते हाँ लैटरल यूनिवर्सल हैं। वो तो उनको आप एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि बिहेव लाइक एन इन्वर्ट। आप दो बच्चों को खड़ा कर दो आमने सामने कि आई एम रेजिंग माय राइट हैंड और तुम भी अपना राइट हैंड उठाओ। उठाइए आप। जो क्लासरूम में ही है हाँ होता है। तो हो गया ना कि मुझे तो ये कौन सा दिख रहा है। हाँ तो इस तरह से या यू कैन गिव देम कि राइट योर नेम इन इन्वर्टेड फॉर्म। गेम के लिए हम लोग लेके आते हैं। हाँ ये बच्चों को क्लियर भी कुछ बता रहे हैं। हाँ वर्चुअल वाला सर ने पिछली बार बताया भी था कि इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन लेंस है ना मैम आपके पास लेंस? हाँ लेंस है उसमें अगर इससे हो जाए नहीं ऐसे हो जाएगा लेंस। इधर से इस रे को इस पर ले रहा हूँ, ये तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। अगर मैं यहाँ से आने वाले रेस को लूंगा तो ये कन्वर्ज होगा इस पर। सी कैन यू सी द इमेज ऑफ विंडो? अपोजिट सारी चीजें उल्टी दिख रही हैं, देखिए सी दिख रहा है? दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं कोई नहीं आप वहीं रहिए वहीं रहिए आप लोग। इन्वर्टेड सी देखिए उल्टा दिखाई पड़ रहा है। सी दिस ये जैसे ही मैंने अच्छा ये जहां पर ये बन रहा है द लेंथ बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन इज फोकल लेंथ। वेरी सिंपल। जहां कन्वर्ज हो रहा है वो फोकल लेंथ है। नाउ सी दिस इज द कॉनकेव लेंस। सी इज इट फॉर्मिंग द रियल इमेज? बट इज इट फॉर्मिंग? इमेज कैन बी सीन ऑन द लेंस ना इन द लेंस वी कैन सी। नहीं देख सकते, यहाँ तो देख रहे हैं हम लोग, आ तो रहा है बट ये डाइवर्ज हो रहा है जिसकी वजह से नहीं आ रहा। सी दिस अगेन सी मैंने सिर्फ मटेरियल इज रिक्वायर्ड यू कैन यूज आई हैव यूज्ड द टूथपिक्स। आप स्टिक भी यूज कर सकते हैं। पेपर सब बच्चों के पास होता है, उनको बोलिए घर से लाएंगे। व्हाट इज दिस? डाइवर्जिंग एंड व्हाट इज दिस? तो अब इसको हमको उल्टा भी करना है क्योंकि हमें लेंस में बच्चों को बताना है कि उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? कन्वर्स। तो यहाँ शेप कैसा दिख रहा है? दिस साइड ऑफ दिस टू ऐसे दिख रहा है। क्या है? कॉनकेव मिरर। और अब इसका शेप किसके जैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स। तो लाइट रेज क्या हो रही है? फैल रही है, स्कैटर कर रही है। स्कैटर मिरर का शेप है। और इसमें लेंस में बताना है तो कैसे करेंगे? अपोजिट करना है। लेकिन फिर भी हम कैसे बताएंगे? बच्चों को सिखाना है कि ऐसा क्यों हो जाएगा भैया, लेंस में अपोजिट हो गया, इसमें ऐसे। तो याद कैसे रखेगा वो कि यहाँ तो हमने शेप से बता दिया उसको कि ये जो शेप इस तरह से बना, ये यहाँ हम कैसे बताएंगे कि मेरी तरफ है तो ये डी बन रहा है लेंस में। ऐसे डी बनेगा और ऐसे क्या बनेगा? तो इस तरह से हम लेंस और मिरर दोनों में उनको कन्वर्जिंग फिर से बोला था ये डी और सी। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग डी एंड सी। फर्स्ट आई एम टेकिंग मिरर। तो मिरर में आई एम शोइंग द ये वाला मिरर क्या है? शेप उसका वो कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग तो सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी किसकी होगी? कॉनकेव कॉनकेव की। और ऐसी किसकी होगी? तो कॉन्वेक्स क्या है मेरा? डाइवर्ज हो गया। पैरेलल रेज आर डाइवर्जिंग एंड हियर कन्वर्जिंग। अब ये तो हो गया मिरर। अब अगर मुझे बोलना है उनको लेंस के बारे में तो लेंस में मैं उनको लेटर से बताऊंगी। ये कौन सा लेटर बन गया? डी। तो कौन सा हो गया? डाइवर्जिंग। तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स से उठा हुआ और है। ये हो गया तो कौन सा लेटर बना? सी। ये सब करवाएंगे अपने स्कूल में, बच्चे आसानी से सीख जाएंगे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। नाउ इमेज फॉर्मेशन, दीपक सर विल टेल इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। कॉनकेव मिरर। स्क्रीन चाहिए आपको ना? यूज करेंगे। सर इसके बाद अभी लंच ब्रेक कमांड कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाए तो
सा लाइट बंद करवा देते हैं ज़्यादा नहीं नहीं, अच्छा दिख जाएगा दिख जाएगा। नहीं नहीं बहुत क्लियर दिखता है, थोड़ा लाइट कम हाँ। होगा तो। वो हम एडजस्ट कर लाइट्स है ना। एकदम दिख गया इट्स विजिबल। इधर वाले कैंडिडेट्स देख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। उधर रख के दिखा दीजिएगा। कैन यू सी? इधर से सब लोग इस तरफ आ जाए, दिख जाएगा। हाँ है। हाँ वो भी दिखाएंगे अभी। अगर लंच हो जाएगा उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि सो मेनी एक्टिविटीज वी हैव डिजाइन ना। कैन यू सी? दिख रहा है इन्वर्टेड? एक मिनट, अब आप लोग बताएंगे इमेज Real है, क्लियर है कैसी है? इज इट क्लियर? इज व्हाट यू आर? रियल है, इन्वर्टेड और इरेक्ट? इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और किस पे बन रही है? हाउ कैन यू टेल? That you Screen need, पे तो बन रही है, that you that I need to know. find where its focus is there and कहाँ पर where है? the infinity is there for this particular mirror, that you need to find. Ma'am will tell how to find it. See this. मैं सिर्फ आपको इमेज फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, कैसे बनेगा ये देखिए। Done? सेम साइज का बनेगा तब One होगा। condition will be there when you have to put the object and the screen at the same distance. See this. See this. This is what? The object is at 2f. That is why the image is also at 2f. Okay. Now I'm making it closer towards the focus. Now the image will be at infinity. You see, it is there on infinity or not? You see here, it is getting clear. Beyond center of curvature. आ जाएगा, थोड़ी दूर हो जाएगा, नीचे डाउन। रुक एक मिनट, इधर लाइट मुझे देखने दीजिए। लाइट की वजह से लाइट सर बंद कर सकते हैं। अच्छा, इसे फोकस पे ले जाते, इसे इंफिनिटी पे ले जाते हैं तो फोकस पे बनेगा कि नहीं ये देखते हैं। पीछे वाली जल्दी ना दीजिए, नहीं तो बंद इसे दूर करते हैं तो ये फोकस पे बन। सी दिस बन रहा है। अभी ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे और इमेज बन रहा है फोकस पर। बन रहा है। नाउ सी 2f दिख गया आपको? ये दिख रहा है 2f पर, देखिए है। अभी इसको सामने लाने से इंफिनिटी इसके लिए थोड़ा दूर हो रहा है, इस वजह से नहीं, उतनी दूर नहीं, नीचे जा रहा है मैम। ये नहीं इधर यहाँ नजदीक नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक बार देखिए ये बंद कहाँ है। नहीं रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। हाँ रुकिए, बस ऐसे ही लेके जाइए। रुकिए, मुझे इसको फोकस पर करने दीजिए। हाँ यस यू कैन सी नाउ। ये देखिए बन गया, ये देखिए Infinity means See this. any distance बन रहा है। beyond this. इंफिनिटी मैग्नीफाइड इसके बाद कोई भी इन्वर्टेड हो सकता है। बन रहा है ना। लार्जर साइज का भी है। लार्जर, हाँ मैग्नीफाइड, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। मैग्नीफाइड at infinity means this is the focal length of this particular mirror. This is the focal length. Okay, now I am taking it to focus and taking it to infinity. Now you see what is happening. See this. Infinity पे है तो ये focus पे बन रहा है, देखिए diminished figure पॉइंट वाइज है। See this. ऐसे भी आप दिखा सकते हैं सर, आप लोग भी देख लीजिए एक बार, इधर से दिखा दूंगा। इधर भी इस तरफ कर लीजिए, इस तरफ सर, इस तरफ उसको घुमा दीजिए। ठीक है, उसका उल्टा डायरेक्शन कर लीजिए। हाँ ठीक है ओके। पिन लेने से ज्यादा अच्छा होता है। लैब से पिन ले लेने से है यहाँ पे भी आप वो माचिस की तीली रख कर भी कर सकती हैं, मेजर करके। स्टैंड वाला पिन आता है। हाँ ये बड़ा अच्छा दिख रहा और पीछे करिए, और पीछे करिए, और पीछे करिए। The object is at focus, so you need to take it to infinity. है। Yes. इमेज Okay. Now you see इन्वर्टेड एंड लार्ज। inverted image. Now I am taking We the can object use, to infinity and see the Scale to measure the distance also. So it is 20 centimeter होगा लगभग, because my lens is of focal length 20 centimeters.
देन सेकंड सर उसे लाइए इसे इधर इंफिनिटी पर ले जाते हैं। आप स्क्रीन को क्लोज करिए। See this. अब वो इंफिनिटी पे है तो इमेज विल बी एट फोकस और यू कैन मार्क द पॉइंट ऑन दिस पेपर। आई हैव जॉइन दिस पेपर, आप उस पे मार्क कर लीजिए। 2F पर ले जाइए मैम उसको। 2F मार्क कर लीजिए और उनको बताइए कि यहाँ रखा तो कहाँ बना, यहाँ रखा तो कहाँ बना। चौक से भी कर सकते, टेबल पे भी कर सकते हैं आप। इसे 2F पर करिए। See this. और क्लोज इधर। हाँ बस। See this. Object is at 2F. Image and we is are at getting the image also at 2F. Clear? Scene उधर size, बढ़िए। inverted and scene size. आप इधर से देख लीजिए। This is focus Infinity. infinity. See this. दिख रहा है सर? उसे इंफिनिटी पर ले जाइए मैम। See this. Focus. Converging. The rays are converging at this particular point. 2F पे लाइए उसको। और छोड़िए। 27 इंफिनिटी पर हाँ ये दिस इज दिख रहा है सर? एज बी नियर द लेंस, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगी इमेज कैसी बनेगी? Image will be virtual size. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कम होता जाएगा, साइज क्या होगा बढ़ता जाएगा। ये इधर आएगा ऑब्जेक्ट को नजदीक। आप मैग्नीफाइड इमेज नहीं वो ज्यादा क्लोज हो गया, वर्चुअल इमेज आएगा। थोड़ा हाँ। फोकस पे रखिए इसको। नाउ सी दिस इज फोकस एंड पोल के बीच होगा तो वर्चुअल वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड एकदम क्लोज And करेंगे direct तो हो फिर जाएगा। आपको उसी साइड पे बनेगा, वर्चुअल वो नहीं दिखेगा। हाँ दैट इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके मैम। हाँ उसे बंद कर लीजिए। आगे बढ़ो। हाँ ये दिखा। दिख रहा है। ऐसे भी दिखा सकते हाँ वहाँ पे दिख रहा था। मैम दिखा ये यहाँ पे। और फिर एक एक्टिविटी आपकी बुक में ही दी हुई है। यू कैन सी द कॉइन व्हेन यू पोर वाटर इन इट। एक बार इज इट बाय मैजिक? नहीं No, it is science. Why it is so? It is due to refraction of light, because light is bending when going from one medium to another. Then one more thing, when we teach refraction, we tell student that light bend due to the change in speed when it travels from a denser medium to rarer or rarer to denser medium. And it is optical density then बताते हैं हमको. Then it is essential that you clear that this density is different from normal density, mass density. दिस इज ऑप्टिकल हाँ, this is optical density, है ना? Some material can have more mass density, but they can be optically rare. For example, water and oil. Oil floats on water. It means it has less denser than water. But bending of light किस में ज़्यादा होगी? Oil में कि water में? दिख जाएगा रिफ्लेक्शन उसमें। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। एंड सर ने जैसे बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट, मैम ने भी बताया कि क्यों कम हो जाती है। ठीक है, हमने अपने तरह से बच्चों को समझा दिया कि ट्रैफिक जाम होता है तो स्पीड अपने आप कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं उसमें, डेंसर है वो। एक्चुअली डेंसिटी समझाने के लिए वही यूज करना हाँ, पड़ता है, हाँ। तो उससे दिमाग में थोड़ा बात आता है। रिसर्च के टाइम का भी फील्ड का जैसे वो बताया। जाना में आपने डिटॉल लाया, डिटॉल नहीं चाहिए, ला देते हैं अभी तुरंत। डिटॉल से हो जाएगा। स्लाइड वाला दिखा हाँ ये सर लोग आएंगे अब एक दो, सर प्लीज आइए, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। उससे इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, ये जो मैं एक्टिविटी दिखाने बताना वाला है हूँ बच्चों को, लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा। मैम, ये जो मैं दिखाने वाला हूँ कौन सी क्लास? Class. ये This activity is in the book. बुक में लिखी हुई है ना, व्हाट टू डू
It is the glass slab. You need to draw a thick line on the paper. और जब आप इस पर glass slab को रखेंगे, sir please come. Those who want to see come. ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए। या ऐसे भी करके दिखा दीजिए। ऐसे भी अभी दिख जाएगा, आप- ऐसे भी दिख जाएगा। सही, ओके। ये लाइन अभी आप देख पा रहे हैं। इसको मैंने यहाँ रखा है तो आप देख पा रहे हैं। Now you see, मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ। अब आपको लाइन में कोई चेंज दिख रहा है? दिख रहा है? ये लाइन जो इसके बीच में से दिख रहा है वो थोड़ा अप नहीं दिख रहा आपको? ये आपको उठा हुआ नहीं दिख रहा? और ये जो दोनों जो पैरेलल एजेस हैं स्लैब के, उधर देखिए वो लाइन उठी हुई दिख रही है? सर मैं यहीं आ जाऊँ। Show वहीं आ it, जाओ। show it here in the camera. उसके दीपक ऊपर से सर। लग रहा है सर कि ग्लास ये इस लाइट इस यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है, जहाँ मेरी उंगली है, यहाँ नीचे से उठा हुआ है? देखिए सर। See, if I am putting this glass slab on this thick line, the line appears to be raised. ब्लर्ड नहीं है, रेज्ड है। Raised. सर आपने जो लिखा है दिखाइए। ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन हाँ हाँ, reflection।